इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। अभी इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन में there are two main impacts of taxation in an investment appraisal. Tax is charged on operating cash flows, and दूसरा है tax allowable depreciation, sometimes referred to as capital allowances or writing down allowances, can be claimed, thus generating tax relief. तो ये टैक्स रिलीफ दे देता है, लेकिन बाद में इसको फिर से एड बैक करना पड़ता है। फिर रिविजन ऑफ टैक्सेशन on operating cash flows. Tax on operating cash flows. Corporation tax charged on a company's profits is relevant cash flow for NPV purposes. It is assumed that operating cash inflows will be taxed at the corporation tax rate. Operating cash outflows will be tax deductible and attract tax relief at the corporation tax rate. Tax is paid in the same year the related operating cash flow is earned unless otherwise stated. The tax is paid in the same year unless otherwise stated. बराबर. Investment spending attracts tax allowable depreciation which gets tax relief. See in the section above, section below. The company is earning net taxable profits overall. तो इन्होंने दिया हुआ है। तो इनके नेट टैक्सेबल पे अपने को एनपीवी के बाद वो डिस्काउंटिंग लगाना है टू फाइंड द एनपीवी। फिर ये होता है टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे होता है। फिर देखो ओरिजिनल कॉस्ट क्लेम, क्यूमुलेटिव टीएडी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, डिस्पोजल वैल्यू, फिर या तो बैलेंसिंग अलाउंस मिलता है या फिर चार्ज मिलता है। You should carefully check the given information in the question. However, since the examiner could ask you to examine the impact on the project of potential changes in the rules, for example, giving 50% of TAD in the first year of ownership and 25% thereafter, giving 100% first year TAD allowances. These are sometimes available to encourage investment in certain areas or types of assets. Changing the calculation method from reducing balance to straight line. Changing calculation method. ठीक है, यहाँ से जरा आगे पढ़ना, तो मैं ये कनेक्ट कर लेता हूँ। Calculating the free cash flow of a project, taking account of taxation. In project appraisal, the effect of taxation must be taken into account when calculating the free cash flow to be discounted. In project appraisal, the effect of taxation must be taken into account when calculating free cash flow to be discounted. Illustration of taxation investment appraisal. A company buys an asset for 26,000. It will be used in a project for 3 years, after which it will be disposed of on the final day of year 3 for 12,500. Tax is payable at 30%. Tax allowable depreciation is available at 25%, reducing balance, and a balancing allowance or charge should be calculated when the asset is sold. Net trading income from the project is 16,000 per year, and the cost of capital is 8%. Forecast the free cash flow of the project and determine whether it is worthwhile using the NPV method. Okay. So, तो क्या बोलना। अब इनको दिया हुआ है वैल्यू एज 26,000 और उसका बोला है 3 इयर्स का वो है, तो हम लोग उस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट करेंगे एट अ रेट ऑफ 25% फॉर 2 इयर्स, एंड थर्ड ईयर पे अपन डेप्रिशिएट नहीं करके 12,500 से उसको सब्ट्रैक्ट करके चार्ज या जो भी रहेगा वो ले आएंगे। परफेक्ट।
project. Oh, नहीं नहीं, 26,000 is not the income. 16,000 is the income. 16,000 है. इनकम 16,000 है. एसेट का वो, Asset जो 26,000 है. हाँ एसेट 26,000 है. और वो कितने पे रहा है? 12. और फिर बाद में इधर 12,500 है ना. हाँ, तो अभी अलाउंस आया है कि चार्ज आया है. अभी तो बैलेंसिंग अलाउंस आया है 125. 2125, राइट. अभी देख, एनपीवी यूज तो करना है, लेकिन अभी रेट कौन सा ले. या इसमें इतना शायद नहीं आगे जाना है, इसमें थोड़ा सा ही करना है. रेट हाँ दिया नहीं, हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. कैपिटल इज है है 8%. है मैंने बाद में देखा. इस पे हम लोग टैक्स लगाएंगे 30%, और फिर ऐड करेंगे वापस से वो वैल्यू ना. हाँ, मैं एक्चुअली ईयर 3 के लिए लेकिन श्योर नहीं हूँ. 2125 नेगेटिव में जाएगा क्या टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन. हाँ जाएगा. जाएगा ना. जाएगा. ठीक है. तो fuck am I doing here? इसको नीचे लिखना है, इसके ऊपर टैक्स लगाना है. देखो 13,150 आ रहा है. उसके बाद क्या इसको नाम क्या दूं, अभी वही समझ में नहीं आ रहा जरा. फ्री कैश फ्लो. अच्छा कैश इसको इनफ्लोज. कैश इनफ्लोज ही बोल दिया मैंने सीधा. नहीं पता, मैंने भी नाम नहीं दिया. वैसे उसका नाम ही नहीं दिया. डिस्काउंट फैक्टर इन फैक्टर तो. क्या है? 8% है ना. अच्छा, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट क्या था, वॉज इट द एसेट. और एसेट कितना वैल्यूड है? 26,000. Do you think that would be the amount of investment required? आई थिंक क्या. देखते हैं ना कितना क्या आता है. 8%. ये भी फॉर्मूला डाल के करना चाहिए. पता 8%. नहीं, पता है मेरे को. हाँ हाँ, हम हमेशा क्या लगता है कि अगर वो लोग ने कोई चीज दी है तो मैं अपने से मेहनत क्यों करूं. जस्ट जस्ट द फन ऑफ इट, मैं नहीं करता. 6 सेम आ रहा है, मेरे को आ रहा है 640, 6428. 6427, राइट. मेरे पास बुक ही नहीं है यार, मैंने बुक बाहर रखी है.
अच्छा, आप तो दोनों मेथड कर रहे हैं। बस देखना है मेरे को, बस देखना है, क्यूरियोसिटी है मेरे को कि। मैंने भी दोनों किया। ओके, ये वाले में वर्क क्यों नहीं किया? मेरे में किया। क्या बात कर रही है? अरे हाँ, मैं समझा क्यों नहीं वर्क किया, मैंने प्रेजेंट वैल्यू का ही एनपीवी ले लिया। मैं कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट नहीं लेना कैश चाहिए ना। का लेना। हम्म, उसको फ्री 60। कैश फ्लो बोलते हैं ना अपन। हाँ, फ्री कैश फ्लो इसको बोलेंगे? नहीं, फ्री कैश फ्लो तो हाँ। इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद, हाँ क्या? अरे ठीक है। फ्री कैश फ्लो पे ही अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के कैलकुलेट हम्म करते हैं ना। मेक सेंस, यस। देखते हैं अभी कितना आता है इनको एग्जैक्ट। इन लोग को एनपीवी 16,000 क्यों आ रहा है? हमने कहा अरे, 1000। सेल प्रोसीड खाली नहीं डाला, ओके, नॉट बैड नॉट बैड, ठीक है। कौन सा सेल्स प्रोसीड्स? 12,000 का मतलब वो बिक भी गया ना। ओह, लास्ट थर्ड थर्ड ईयर में आएगा ना वो। बस वही, ठीक है, नॉट बैड। यार ही है भाई, ऐसे हग रहे ना इतना अच्छा करके। 12,500 है ना। 16,372, हाँ एग्जैक्ट सेम, नाइस, गुड टू नो, गुड गोइंग, वन मिस्टेक। 16। ठीक है। अभी, फिंगर्स थोड़ा हैंग तो आ रहा है। थोड़ा हाँ, सा हैंग आ रहा TYU2, अब प्रोजेक्ट ने नेक्स्ट पे जाए। है। हाँ, एक सेकेंड। मेरे पास ये है नहीं पीडीएफ। एक सेकेंड होल्ड करेगा, जाने मेरी बुक लेकर आती है, एक सेकेंड। जो तेरे पास है नहीं पीडीएफ? नहीं, मैं बुक लेकर आती है, एक ठीक मिनट। है, ठीक है, ठीक है, नो इश्यूज। The project will require investment of पेज पेज नंबर। 52, पेज नंबर 52। ओके, पढ़ो। हाँ, a project will require investment in a new asset of 10,000. It will be used on a project for 4 years, after which it is disposed of on the final day of year 4 for 2,500. Tax payable 30% 1 year in arrears. ठीक है। Tax allowable depreciation available 25%, and the balance allowance or charge should be calculated when the asset is sold. Net operating cash flows from the project are expected to be 4,000 per year. Nice, good going. 4 साल है, ठीक है। वर्किंग नोट्स, यहाँ पे सबसे पहले तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, 4000। क्या क्या? नेट ऑपरेटिंग फ्लो इज 4000। देखिए, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, TAD, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, या ऑपरेटिंग कैश नहीं है, किसी को खाली कैश फ्लो ही लिखता हूँ, जहाँ देख रहे। टैक्स जो मुझे भरना है अरियर्स में, जिसका रेट है 30%,
इन्वेस्टमेंट टीएडी। तो ये खाली फॉर्मेट बना के रख दिया मैंने इतना। अभी टीएडी कर लेते हैं। टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, देख मैंने इन्वेस्ट जो किया था एसेट में वो था 10,000। अभी उसके ऊपर टैक्स अलाउएबल डेप जो मुझे मिल रहा है ईयर 1 के लिए वो है 25%, है ना। हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। फाइनल ईयर डिस्पोजल जो हो रहा है वो हो रहा है 2,500। सो वी विल राइट हियर सेल प्रोसीड्स। सब एकदम अच्छे से लिखेंगे। टीडी एंड लास्ट में अलाउंस। हाँ ठीक है, आई गेस। बैलेंसिंग अलाउंस, ये भी नेगेटिव में ही आएगा, है ना। हाँ, हाँ बराबर, ये भी नेगेटिव में ही आएगा। तो लेट्स सी, ये सारी चीजें पॉजिटिव में आ गई, ये सारी चीजें पॉजिटिव में आ गई, मतलब टैक्स पे होगा। टैक्स पे होगा मतलब यहाँ पे टीएडी में सब पॉजिटिव हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, प्लस इज पॉजिटिव। लेट्स गो। कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज, 10 वैल्यू, 10%। तू मेरी स्क्रीन देख रही है क्या? मेरा हो गया है। अब ओ मैं ओके। अब तेरा मेरे को। 0.683। जैसे डिस्काउंट फैक्टर खाली लिखते जा रहा हूँ मैं अभी, 0.621, 0.683, 0.621, 0.6, हाँ। Actually, I'll चल take अपना another मैच तो minute. कर रहा है। एक सेकंड, I'll take another minute. टीएडी यहाँ पे माइनस किया बराबर, तो नीचे आके ठीक है, टैक्स वैक्स सब पे किया, 30%, 30, 30, 30 ऑफ दिस, 30 ऑफ दिस, ठीक है हाँ। बराबर है, टीएडी सब पॉजिटिव में। सेल प्रोसीड इस बार लिखा हुआ है ईयर 4 में ही मैंने। ठीक है। एक्चुअली सेल प्रोसीड पर टैक्स पे होगा नहीं, वो हमें यहाँ पे टैक्सेशन नहीं करना ना, बाद में करना है। इन्वेस्टमेंट 10,000 नेगेटिव। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, हाँ 10,000 की ही है ना। ठीक है, आई थिंक सही होगा, कुछ ऐसा गलत तो नहीं लग रहा।
ठीक है। तो 2580 बेसिकली। ओ वेल, मुझे एक और पीडीएफ नहीं खोलना। Right, 2576. This 2576, is right. यस। 2576, परफेक्ट। तो ये सही है अपना आंसर। गुड टू नो। चलो नाइस, अभी आगे बढ़ सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Internal rate of return as well, okay, as well as NPV. The other discounting or technique used to appraise investment projects, which you should recall from earlier studies, is the calculation of internal rate of return, IRR. एक मिनट ना, मैं इधर यहाँ पे खोल लेता हूँ मेरे टेक्स्ट बुक में, क्योंकि मैं शायद कुछ नोट्स वगैरह भी लिखे थे। IRR के केस में it represents the discount rate at which NPV of an investment is zero। बराबर, मतलब इतना तो मिनिमम मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। वो इतना तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, ऐसा रहता है वो IRR। इट कैन बी फाउंड बाय लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग एंड नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं हुआ ना ये, सॉरी, लीनियर इंटरपोलेशन मतलब एक्चुअली दो अलग अलग डिस्काउंट रेट्स को लेके उनका हायर लोअर फाइंड आउट करना, सॉरी माय बैड। Standard projects outflow followed by inflows should be accepted if the IRR is greater than the firm's cost of capital. हमारा IRR should be greater than cost of capital. Cost of capital is the risk that we are going to take. So our return should be higher than whatever risk-taking approach is. Make sense? फिर अभी हमें क्या करना है, हमें दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स लेने हैं, और उन दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स को लेके हम हमारे दो एनपीवीज कैलकुलेट करने हैं। अगर एक बार हमें हमारे दो एनपीवीज मिल गए, फिर हमें ये हायर और लोअर ऐसा करते जाना है। एनपीवी ऑफ तो नहीं लोअर। करेंगे, अपन तो वो आईआरआर वाला फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला वाला लगा सकते हैं, एक्चुअली फॉर्मूला वाला इजी रहेगा। ये याद ही नहीं रहेगा, और फिर एक एक नंबर डालो, ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, पता नहीं दैट यार, ये प्रॉब्लम। मैंने एफएम में इतना सही से किया हुआ था ना, मेरे को यही बहुत सूटेबल लगता है, बट एक्चुअली द थिंग इज एग्जाम में टाइम ही नहीं रहेगा, सो टाइम। वी वोंट हैव। चल देन, टीवायू पे पूछ जाते फिर। नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थवहाइल यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। ओके, तो एक एनपीवी तो फाइंड आउट करना ही है। टाइम। 100, 600, 600, 440। कैश इनफ्लोस। Okay, there is no scrap value. Funds are generated 1% initial investment. अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है? शिट। हाँ, डिस्काउंट। फिर हो गया क्या? आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 0.893, 0.893, 0.3,
797.712, 0.636, 0.567 PV, -96.72 बराबर है, शायद यही आया था, मैं तो मुझे याद है। और फिर आता है IRR। रहते हैं। अब अभी IRR के लिए, IRR एक मिनट, बट IRR ये चीज क्या हो गया? ये चीज में अगर यही चीज मैं इसे हम्म। कॉपी पेस्ट कर दूं सेम एंड हम्म। जस्ट प्रेजेंट जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको मैं 8 ले लूं तो 2 एनपी में हो जाएगा ना मुझे। हाँ बराबर। तो मुझे 2 एनपी भी मिल गया। मैं तो फिर एक्चुअली हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली वो फॉर्मूला ना IRR के लिए मैं देख रहा हूँ कि वो एक्सेल वाला फॉर्मूला मैं ट्राई कर रहा हूँ, कहीं से इससे तो मिल जाए तो। हमारा 1%। IRR इज B2 से B3, B2 क्या है मेरा? ओके, बी, बट नहीं हो रहा है रे। इज इक्वल टू IRR, ब्रैकेट ओपन, वो बोल रहा है नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लो, ब्रैकेट क्लोज, 10% आ रहा है मेरा IRR है। कैसे 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 किया तूने? 10% है क्या? रुक जा, 10% है हाँ क्या? 10% है 10% है। ओह नाइस। तो ये देख, खाली इसको लेकर तेरे फ्री कैश फ्लो को तेरे को खाली सिलेक्ट करना है। अब सिर्फ आया लेके फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो को सिलेक्ट करना है, हाँ। तूने रेट नहीं लिया क्या उसकी? रेट नहीं लिया, बट रेट तो लेगी कैसे ना, क्योंकि दो रेट्स है। एंड अपन तो क्या दो करते, ले रही अपन थी। हमेशा, अपन हमेशा दो वेग रेट, मतलब वेगली रेट्स लेते हैं ना दो। लाइक वो तो अपने ऊपर है। -9% आ रहा है। तो कितना आ रहा अच्छा है? एक सॉरी मैंने रॉन्ग ले लिया। -9 प्रेजेंट वैल्यू ले लिया। IRR इंटू ब्रैकेट ना IRR ब्रैकेट फिर पूरा वैल्यू ले लो ऑफ कैश फ्लो। तो बेसिकली दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी टेकन, बिकॉज एक तो 12% का अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अपना रिस्क रेट, और अपन का यदि 10% का IRR आ रहा है, और NPV खुद भी वो नेगेटिव में जा रहा है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं लेने का है बेसिकली। 3 सेकंड है मैं अभी तक क्रैक नहीं कर पाई। हाँ आराम से। IRR ना, इज इक्वल टू 5 RR ब्रैकेट कैश इनफ्लो। फ्री कैश फ्लो के खाली कॉलम को सिलेक्ट करना। पूरा हो गया आ गया। तो ओके। मतलब एक ही बार कैलकुलेट करना है एनपीवी हम्म। एंड उसके बाद दैट्स इट। मतलब आई व्हाट हम्म। आई डिड पता है क्या, मैंने 2 एनपीवी निकाला। आई हाँ गेस वैसा दैट भी वुड कर हैव बीन सकते हैं। डन इफ विद द फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना रहता तो आई गेस। हाँ विद फॉर्मूला अप्लाई करना होता तो। एक्चुअली इस फॉर्मूला का नाम क्या है, कि शायद वो दे सकते हैं कि यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि आईआरआर इतना सिंपल तो नहीं देंगे। अच्छा ओके। बेसिक। इतना नहीं बेसिक तो यार मैं एग्जाम बताऊँ में क्या, नहीं। प्रोफेशनल में दे आर नॉट लुकिंग फॉर अस दैट डू वी नो द फॉर्मूला हम्म। इन आवर माइंड, दे वांट टू हम्म। सी दैट डू यू इवन नो हाउ टू अप्लाई, कि हम्म। यहाँ पे आईआर लगाना है और वो देखना चाहते हम्म। हैं बस। हम्म। IRR provides a decision rule for investment appraisal, but also provides information about about the riskiness of a project. That is the sensitivity of its returns. The project will only continue to have a positive NPV while is the firm's cost of capital is lower than the IRR. मतलब बेसिकली उन्होंने सेम ही चीज बोली है कि IRR ज्यादा बड़ा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। A project with a positive कॉस्ट NPV ऑफ at कैपिटल 14%, but a positive NPV at 14%, but an IRR of 15%, for example, is clearly sensitive to an increase in the cost finance and increase in the investor's perception of the potential risk
Any alteration to the estimates used in the NPV appraisal, interpretation of IRR. Increase in interest rates will clearly increase the company's cost of finance as well as will concerns affecting the stock market as a whole and hence returns demanded by investors. However, other company specific factors such as the actions of competitors may affect the firm's position in the marketplace and the viability of its business model. This could impact the level of systematic risks it faces and the result in an increase in the required return of shareholders. Where the IRR is close to the company cost of capital, where the IRR is close to the company cost of capital, any changes to the estimates in the NPV calculations will have a significant impact on the viability of the project. Exactly, क्योंकि हम लोग IRR NPV के बेसिस पे ही तो ले रहे हैं. क्योंकि मैंने अभी जस्ट ना एक ट्राई किया था. ये देखिए मैंने ना प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे लिया था कि अगर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया तो सीधा वो -2% ही हो गया. बट एनी अपन एनेक्स. एनपीवी के बेसिस पे थोड़ी लेते हैं यार, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा कैश हूँ फ्लो के बेसिस पे कि लेते हैं ना। हाँ 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 हाँ, कैश फ्लो बेसिस पे मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि अगर इतने के जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू अगर इतने के हमारे ये कैश फ्लो ही बन गया तो बहुत बड़ा चेंज. बेसिकली अगर ये अगर 200 हो गया तो देख सीधा वो समझी मैं। 5% पे आ गया. अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हुआ डिफरेंस, हाँ बिकॉज तो सीधा वो जैसे पांच अभी परसेंट एक पे. तो चिराग काफी, वैसे तो इधर काफी फ्लक्चुएट हुआ है, बिकॉज 440 से 249 हो गया, दैट्स लिटरली हाफ, मोर देन हाफ, हम्म. ऑलमोस्ट हाफ। Any unexpected changes, such as an increase in the cost of raw materials or an aggressive advertising campaign run by a competitor, will erode the return margin and may make the project unacceptable to the investors. बराबर में तो बेसिक है. अभी आता है मॉडिफाइड आईआरआर, ये अपने को नया है. अभी मॉडिफाइड आईआरआर में प्रॉब्लम क्या थे? There are now a number of problems with the standard IRR calculation. The assumptions IRR is often mistakenly assumed to be a measure of the return from a project, which is not. IRR only represents the return from the project if funds can be reinvested at the IRR for the duration of the project. ये क्या था? That is only mistakenly assumed to be a measure of the return from a project, which is not. IRR return of the project तो नहीं है. IRR only represents internal rate of return. इसका मतलब Presents. जो रिटर्न आता है कंपनी से, ये वो नहीं मेजर करता है, हाँ 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 बराबर. कितना परसेंट because इंक्रीज IRR होगा only वो मेजर represents नहीं the करता. return from project. If funds can be reinvested at the IRR for the duration of the project, मतलब मतलब हम अगर अपन हमारे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम हमारे इंटरनल फंड्स को ही री इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न आएगा. नॉट कि बाहर से फंड्स मिल गए तो हमने री इन्वेस्ट कर दिया ऐसा. समझा? हाँ ये देख इन्वेस्टमेंट फेज. तो ये सब एमआईआर में कंसिडर होता है, whereas हमारे केस में वो नहीं होता है. हमारे केस में इंटरनल फंड्स के ऊपर गेम चलता है ऐसा आईआरआर के केस में. द the decision rule is not always clear cut. For example, if a project has two IRRs or more, it is difficult to interpret the rule which says accept the project if the IRR is higher than the cost of capital. एक बात बोले Choose. इसे, बोल बोल. दो आईआरआर कैसे हो सकते हैं? अपन कैश फ्लो पे आईआरआर निकाले ना फॉर्मूला अप्लाई करके, हम्म. तो वो कैश फ्लो कंसिस्टेंट ही रहेगा ना, वी डोंट नहीं. चेंज द कैश फ्लो। नो नो नो, या यू आर राइट दैट वी डू नॉट चेंज द कैश फ्लो. बट अभी हमने ये एक्सेल पे फॉर्मूला लेके आईआरआर कैलकुलेट किया. हम पहले कैसे करते थे, हम दो अलग अलग स्टैंडर्ड ये लेते थे, एनपीवी लेते थे, उनके रेट से करते थे. तो उस दिन शहर ने एक रेट से किया था और उसको आईआरआर 14% आया था और अपने को 10% आया था, दो अलग अलग आईआरआर लेके. तो दो आईआरआर बन सकते हैं. मतलब वो पर अगर डिपेंड करता है हाउ फॉर्मूला है शॉर्ट और हाँ. पर अगर बोल. फॉर्मूला है
तो फिर व्हाई वुड वन, तू समझ रहा ना मेरा डाउट क्या है, मैं ये कहना चाह समझ रही रहा हूँ हूँ, कि समझ अगर रहा हूँ। फॉर्मूला में आंसर 10% आ रहा है तो फॉर्मूला भी तो कुछ है ना, लाइक फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड ऑन कैश फ्लो, देयर वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रेट, देयर वी आर नॉट टेकिंग मल्टीपल रेट्स और कंपेयरिंग इट, और वैसे कुछ नहीं कर रहे, एक फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर, दिस वुड नॉट चेंज इवन इफ वी अप्लाइड ऑल ओवर अगेन। तो वापस से चीज करेगा 10% ही आएगा, फिर से करेगा 10% ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि चेंज करेगा ना अमाउंट। राइट तो राइट। मुझे वो थोड़ा इलॉजिकल। रिकॉर्डिंग चालू नहीं था इतना पूरा सम करने के बाद, इतना पूरा सम करने के बाद यार, व्हाट द अब फक जता मत यार। रिकॉर्डिंग पे दैट तू ये कहना चाह रहा है कि मैंने बहुत मेहनत किया बट मैंने दिखाया नहीं, ऐसे रिकॉर्डिंग में मत जता। ओ माय गॉड भाई, इतना सेक्सी पूरा सम एक फ्लो में सॉल्व हुआ था, ये एक एमआईआर का गाइस इतना फॉर्मूला। सेक्सी नहीं था, गाइस इतना सेक्सी नहीं था ये सब। ओ माय यूट्यूबर फॉलोवर्स गॉड। गाइस। नहीं नहीं, ये एग्जांपल अभी मैं स्किप करने वाला था, ये तो अभी करना ही है भाई एग्जांपल, चल चल। चल बाय। यार भाई, नहीं, एग्जांपल है गाइस, और ये एग्जांपल अल्टरनेटिव मेथड है, तू अल्टरनेटिव मेथड भी करेगा। पर्टिकुलर्स, नहीं इस सेम मेथड को अपन अपने मेथड से करेंगे ना। गुड नहीं गुड, अल्टर पूरे चीज को अपन अपने मेथड से करेंगे ना। अच्छा, दिस इज व्हाट यू से। थैंक यू यदि, तूने बहुत जल्दी रियलाइज करवा दी ये बात की रिकॉर्डिंग चालू नहीं था। इन्वेस्टमेंट 20,000 -2,000 कैश फ्लोज। मुझे आते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे तेरा वेट नहीं करना चाहिए कि गलती आएगी ज्वाइन करेगी उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, आते ही कर देना चाहिए था। You're so mean, bro. What is the percentage that you have? कौन फाइनेंस, अरे इसने अलग अलग दे दिया साहिल। हाँ, दैट्स द होल पॉइंट ना। MIRR के एक्सेल के फॉर्मूला में दो रेट्स क्यों है? दो रेट्स इसीलिए है बिकॉज अलग अलग अप्लाई करना है। चलो भाई, अभी फॉर्म्स फाइनेंसिंग रेट इज 9%, बराबर है। तो डिस्काउंट रेट इज 1 एंड 9% है ना, सो 9% के लिए 0.842, 9%। एक मिनट रुक जाए, री इन्वेस्टमेंट रेट हाँ 6%, ठीक है गुड, बराबर बराबर जा रहा हूँ, 6% ही है। तो मैंने से नोट करेंगे। 0.792 व्हाट? तू 9% नहीं लगाएगा नेगेटिव वाले पर, 9% लगाएगा नेगेटिव वाले पर, वो फाइनेंस है ना, 20,000 पर भी। ऑफ कोर्स वो फाइनेंस है ना, तू फाइनेंस कर रही है। एंड PVR एंड PVR PVI रिटर्न
1.81 आ रहा है मुझे ये। क्या? 1.81 आ रहा है मुझे, ये गलत है। 1/n, 1/n क्या होता है? कितने सालों के लिए है ये प्रोजेक्ट? हाँ, एक मिनट, गड़बड़ हो गया। सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पीवीआर भी अलग आया है मुझसे? पीवीआर अलग आ गया। मेरा 20620 था, मेरा पीवीआर भी अलग है। How can your PVI be different? 6.559, मतलब 6 कितना परसेंट है वो MIRR आंसर में? एक 6% है और एक 9% है, सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट परसेंट सिक्स है। सिक्स नाइस। लेट्स गो। सिक्स अरे पॉइंट मुझे नहीं आया, मुझे भी सिखा। ये देख, तेरा पीवीआर कितना आया तेरे को? 0620। 6% लिया कि 9% लिया? दोनों, 9% लिया रहेगा ना? दोनों लिया है। 9% क्यों लिया, जबकि वो तेरा री इन्वेस्टमेंट रेट है ना, वो तो ये तेरा। सी 9% फॉर 2 and 0। हाँ बराबर। एंड 6% फॉर द रेस्ट 1, 1, 3, 4, 5। तो या डिस्काउंट फैक्टर क्या लिया? डिस्काउंट फैक्टर देख। डिस्काउंट फैक्टर ही बोल रही हूँ, मेरा सेम है तेरे जैसा ही। एक सेकेंड, मैं इसको 3 डिजिट में कर देती हूँ। 0.943। अरे दिखा दिया स्क्रीन। अच्छा, मुझे लगा तू तेरा स्क्रीन दिखा रही थी, सॉरी। देख ले देख ले। जीरो पॉइंट मैं तो नाइन फोर यहाँ थ्री 0.842, 0.840, 0.792, 0.747। Yeah, फाइनेंस this रेट। is also 7470619. What is wrong? हाँ 7% बराबर। PVR में we don't take 20,000 ना। पीवीआर में वाई, हाँ पीवीआर में वी डोंट टेक 20,000। तो मेरा होटल गलत क्यों आ रहा है? तेरा 3772 आया। 3773 है। हाँ ठीक है। फाइव जीरो हाँ, फोर वन जीरो सिक्स एट फोर 50376019 and 7472। तो तुझे खाली 1, 3, 4 और 5 को ऐड करना है। 1, 3, 4 और 5, 2 नहीं होगा क्या? 2 क्यों होगा, नेगेटिव में तो है तो री इन्वेस्ट करना करना है। सेम डाउट मैंने सर One को पूछा था। second, one second. This plus this plus this plus this. देख मैंने ना What एम आई typing? आर आर देख मैंने ना खाली एम आई आर आर के फॉर्मूला में खाली री इन्वेस्टमेंट रेट की जगह पे फाइनेंस रेट और फाइनेंस रेट की जगह पे री इन्वेस्टमेंट रेट डाला। आंसर देख क्या आया। बट क्रेजी मेरा अभी भाई। भी नहीं आया है, साहिल। 22301 अच्छा, नहीं आ रहा। you added that also. Okay. You added negative का value into PVI का value. So you got PVI का value as 21.6 this, right? हाँ ऑफ Then, कोर्स। okay, so one second. This is negative and this is negative. So 6.75% आ रहा है मुझे। तो भी गलत है क्या? कितना आया? 1028, 6.75। 1028 ना? 1.028। 1.028, हाँ।
हाँ तो बस हो गया वन फिर पॉइंट वो। जीरो टू एट को रेस टू करना है 0.25 के साथ, राइट? हाँ, 1:5 के साथ बराबर। अच्छा, तूने 5 और 5 है, मैंने 2 लिया है। आ गया, आ गया, आ गया। देखो, थोड़ा थोड़ा बहुत। One thing is that if we are negative, तो वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होकर एक हो जाएगा, एंड सारे पॉजिटिव प्लस होकर एक हो जाएंगे। हम्म। देन वो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके we'll get the rating. It's like that. हम्म। This is illustration करना है। Next वाला। Illustration one. इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, बट अभी ये वाला फॉर्मूला इसके साथ ही है। Including IR इलस्ट्रेशन and spreadsheet. सब कुछ करना इलस्ट्रेशन 1। हम्म। क्या कुछ नहीं, खाली फॉर्मूलाज ही तो डालने हैं। 0 1 2 3 4। नेट है। कैश फ्लो 13। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। ये वाला सम अपन ने, हाँ इनके में मतलब मेथड से सॉल्व किया था ये वाला सम। ठीक है। ये किया ही नहीं था ना ये वाला। नहीं नहीं, ये ऊपर वाला MIRR का। ये देख, ओ ये हाँ, देख, हाँ, NPV में भी देख हाँ। सेम है। ये देख NPV में भी देख सेम है, +B2 करती है तू खाली बाद में। तो व्हाट दे हाँ, डू इज, मतलब ये दो अलग अलग, दे दो साथ में। सो बेसिकली दे आर डूइंग द सेम थिंग है। देख NPV ब्रैकेट ओपन, रेट कितना है 10%, कॉमा, they are doing this, bracket open, bracket close, प्लस plus this, so they get exactly the amount. Okay, 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 okay. समथिंग, यू आर एडिंग 10%, व्हाई आर यू एडिंग चलते 10%? चलते यूं ही कोई। व्हाई I'm यू not एडिंग adding 10% 10%. माइनस? I'm not adding या 10%. I'm adding this. यू आर एडिंग, अच्छा। पहले 10% किया था क्या, याद नहीं मेरे को। 5.99, ये देख परफेक्ट आया। मैंने किया भी नहीं है अभी तक। अरे छोड़ दे भाई, IRR में फिर क्या था, बताते रहता है। सिर्फ वैल्यूज लेने थे। क्लोज डायरेक्टली 16% आ गया। ऑफ, हाँ। आई एम द बेस्ट। Did I just say that out loud? Sorry. ये मुझे नहीं आ रहा। एक सेकंड, 13% एमपीवी ब्रैकेट परसेंटेज क्लोज। कॉमा द होल। साइज, शट अप, नॉट गेटिंग इट। छोड़ दे भाई, क्या हो गया, जाने दे, वन सम एट अ टाइम। देख, तूने सबसे पहले, शट अप, तूने सबसे पहले शट ये अप, लिखा क्या, तो शट सबसे अप, पहले शट ये। अप। आ गया मेरे को आ गया, मेरे को आ ठीक गया। है, एक सेकंड, मेरे को सिर्फ ठीक है। एनपीवी आया, बता एनपीवी। मैं आईआरआर निकालूंगी, आईआरआर, आईआरआर, नहीं, IRR is आईआरआर just the ब्रैकेट summation of this। पूरा, पूरा समेशन ना, पूरा। MIRR के बोल, फॉर्मूला में सिक्सटीन समेशन परसेंट आ 10। रहा है, मुझे 16% आ रहा है। जस्ट एक सेकंड रुक जा, मेरे को बस ये जनता के लिए करने दे। ये देख, MIRR में वैल्यूज रहता है, कॉमा फाइनेंस रेट, जिस रेट पे हम फाइनेंस करते हैं, और लास्ट में रहता है री इन्वेस्टमेंट रेट, जिस जिस रेट पे हमारी अमाउंट री इन्वेस्ट होती है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाला रेट और यहाँ पे पॉजिटिव वाला रेट, अगर एक ही रेट दिया है तो एक ही रेट यूज करेंगे बस।
क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, ऑन नहीं हुई थी जो भी। फिर आती है ये झाट भर चीज, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ये नो वन गिव्स अ शिट अबाउट दिस। DPP, DPP. आज के लिए इतना डीपीपी। काफी है साहिल। अच्छा, ओके ओके।